নমস্কাৰ ইয়া দুপৰৰ শিৰোনাম আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল মাজুলী তথা অসমবাসীৰ বাবে আজি ভাল দিন আজি ভূমি পূজন হ'ব যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেৰে স্থলপথেৰে সংযোগ হ'ব বিশ্বৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেল যোগে দলঙৰ ভূমি পূজন কৰিব অনুষ্ঠানত মাজুলীত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী দক্ষিণ পাটঘাটত ভূমি পূজন কৰিব মাজুলী যোৰহাট দলঙৰ লগতে গাডকাৰীয়ে মাজুলী ফুলনিত এখন ৰাজহুৱা সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব এই ভূমি পূজন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অনুষ্ঠানৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদি পাঠশালাত এটা ধূপকাঠিৰ উদ্যোগৰ শুভাৰম্ভও কৰিব মাজুলীবাসীৰ কাৰণে এটা অতি আনন্দৰ দিন কেৱল মাত্ৰ মাজুলীবাসীৰ কাৰণে নহয় সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত ভাৰত চৰকাৰৰ সহযোগিতাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখন দলঙৰ ভূমি পূজনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু সেই উপলক্ষে সমগ্ৰ মাজুলীবাসী ৰাইজে ইয়াতে সমবেত হ'ব মাজুলী সমগ্ৰ অসম ৰাজ্যখন সকলোৰে কাৰণে এটা অতি আনন্দৰ দিন হ'ব গতিকে আনন্দৰ দিনত আমিও ইয়াতে সমভাগী হ'বৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছোহি মই এই ক্ষেত্ৰত মাজুলীবাসী ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আগন্তুক দিনত মাজুলীয়ে যেন আৰু শক্তিশালীভাৱে বিশ্বৰ মানচিত্ৰত জিলিকি থাকিব ইফালে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ লগতে ধুবুৰী ফুলবাৰী সংযোগী দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে স্থাপন কৰিব আধাৰশিলা ধুবুৰী আৰু ফুলবাৰী সংযোগ কৰিব এই দলংখনে 4 লেনযুক্ত দলংখন হ'ব 19.28 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আধাৰশিলা মুকলি কৰাৰ লগতে ভাৰ্চুৱেলি সম্বোধন কৰিব এখন ৰাজহুৱা সভাও এই সভাত উপস্থিত থাকিব অসমৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী 19.28 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 4 লেনযুক্ত এই দলংখন যি দলংখনে বহু ক্ষেত্ৰত যোগাযোগক এক নতুন দিগন্তৰ দিশে লৈ যাব বিশেষকৈ আন্তঃৰাজ্যিকেই নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো এই দলংখনে বিশেষ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বাংলাদেশৰ সৈতে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত বাংলাদেশৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ভূটানলৈ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত সেই আশা ব্যক্ত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ প্ৰজেক্টটোৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে এলেণ্টিক লাৰ্চেন এণ্ড টাৰ্ব্ৰো আৰু 5,000 কোটি টকা ব্যয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এই 4 লেনযুক্ত দলংখনৰ বাবে আলফা স্বাধীনৰ ডেডলাইন উকলিল এতিয়াও সংসূত্ৰ নাই তৈল প্ৰতিষ্ঠান কুইপৰ অপহৃত 2 কৰ্মচাৰীৰ কোট কেনেদৰে আছে কুইপৰ বিষয়া প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ আৰু কৰ্মচাৰী ৰাম কুমাৰ আলফা স্বাধীনেও স্পষ্ট কৰা নাই নিজৰ স্থিতি তেনে সময়তে নিউজ 18ৰ হাতত এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য কেনেদৰে আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰিছিল কুইপৰ 2 বিষয়া কৰ্মচাৰী কুইপৰ ৰিক 3 হৈছিল 21 ডিচেম্বৰৰ নিশা এই ৰিক 3তে বহুকেইটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কি হৈছিল প্ৰকৃততে এই কুইপৰ ৰিক 3ত 21 ডিচেম্বৰৰ নিশা শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ বিৱৰণ দিলে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী সহকৰ্মীয়ে অপহৰণকাৰীৰ লক্ষ্য আছিল কুইপ কোম্পানীৰ ৰিক 3ৰ বিষয়া কেশৱ বৰুৱা কিন্তু কেশৱ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আজি যদি মাজুলী আৰু যোৰহাটক কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ নৱজাগৰণৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ঠিক তেনেদৰে ধুবুৰী আৰু ফুলবাৰীৰ মাজত 3,000 কোটি টকা খৰচ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দলংখনৰো আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত এক নতুন ৰূপেৰে সজাই তুলিবলৈ মহাবাহু নামে নদী খননৰ পৰা জেটি নিৰ্মাণলৈকে এক বিশাল প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰক এক নতুন ৰূপত সজাই তোলাৰো এক আধুনিক প্ৰচেষ্টা আজিৰ দিনটোতে আৰম্ভ হ'ব ৰূপ এক্সৰ জৰিয়তে মাজুলী গুৱাহাটী আৰু যোগীঘোপা ৰাইজৰ মাজত যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থাৰো আৰম্ভণি আজিৰ এই দিনটোতে আমি আৰম্ভ কৰিম এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আজিৰ দিনটোৱে হ'ল আধুনিক অসমৰ শ্ৰেষ্ঠতম দিন যিটো দিনত এই ধৰণৰ মহান কাম কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নতুন দিল্লীৰ পৰা আমাৰ লগত সংযোজিত হৈছে আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত এই মংগলময় দিনত
মই অসমবাসীৰ শ্ৰীচৰণত আকৌ এবাৰ সেৱা কৰিছো। 2016 চনত আপোনালোকে আমাক এটা সুযোগ দিছিলে অসমক নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছিলে খাৰুৱা তেলৰ ৰয়েলটিৰ পৰা, বগীবিলৰ দলঙৰ পৰা, ধৰাখদিয়াৰ দলঙৰ পৰা এই মাজুলীৰ দলঙলৈকে এই বিশাল পৰিক্ৰমা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি আমি এখন নৱজাগ্ৰত অসমৰ ফালে গতি কৰিছো। মোৰ বিশ্বাস যোৱা 5টা বছৰৰ এই অদ্ভুত সাফল্যই, এই 5টা বছৰৰ অসমৰ নৱজাগৰণৰ এই মহান দৃশ্যই আমাৰ অসমখনৰ নৱপ্ৰজন্মক যুগে যুগে প্ৰেৰণা কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ। মই আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত পুনৰ এবাৰ ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডব্য ডাঙৰীয়াক এই মাজুলীৰ মহান ভূমিলৈ আদৰণি জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। মোৰ লগত একেলগে কব ভাৰত মাতা কি। অলপ কম হৈছে নেকি? হয় নহয়? অলপ বেছিকৈ কব লাগিব যাতে মোদী ডাঙৰীয়া ইয়াত নাই, দিল্লীত আছে, দিল্লীত শুনিব লাগিব। লাগিবনে নাই? মোৰ লগত একেলগে কব ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নরেন্দ্র मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हिमंत बिश्व शर्मा जी को धन्यवाद स्वागत भाषण प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पत्तन, पौध परिवहन और जलमार्ग श्री मनसुख मंडाविया जी से कि वे अपने विचार व्यक्त करें। आज के अवसर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अविरत विकास रूपी प्यार बांटने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में उपस्थित, असम के मुख्यमंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे पड़ोस के राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय कनॉट संगमा जी, हेमंतो बिश्वास जी, रामेश्वर तेली जी, मंच पर उपस्थित राज्य के सभी मंत्रिमंडल गण, सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज असम के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज असम को 10,000 करोड़ की विकास की सौगात देने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास से भारत का विकास का सपना देखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज और वाटरवेज डेवलपमेंट के लिए एक अहम कार्यक्रम निभाए हैं। हमारे क्षेत्र के विकास में वाटरवेज का एक महत्वपूर्ण योगदान रहे और वाटरवेज के माध्यम से असम और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो, उसके लिए कई योजनाएं भारत सरकार की ओर से चल रही है। नहीं केवल नदी का विकास, मोदी जी ने कहा कि नदी का विकास करना है, निर्मल गंगा के माध्यम से, नमामि गंगा के माध्यम से निर्मल नदी हो रही है और नदी का विकास के साथ नदी से विकास भी करना है। नदी से विकास की योजना के माध्यम से देश में 4,000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज आज के दिन में ऑपरेशनल हो चुके हैं।
वाराणसी से हल्दिया तक 1400 किलोमीटर, हल्दिया से सुंदरवन 250 किलोमीटर, सुंदरवन से बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट 800 किलोमीटर और धुबरी से सदिया तक 900 किलोमीटर वो असम में आता है, उसका भी विकास हो रहा है। आ रही है कि मैं सर्बानंद जी के चुनाव प्रचार के लिए इसी माजुली में आया था और तब लोगों के आग्रह पर मैंने ये कहा था कि ये ब्रिज का निर्माण कार्य निश्चित रूप से होगा और मैं अपने विभाग से ये करके दूंगा। मुझे लग रहा था कि ये ब्रिज 400-500 करोड़ रुपए में हो जाएगा, पर जब मैं दिल्ली गया और अधिकारियों को जब बुलाया तब 4,500-5,000 करोड़ इसकी कीमत मुझे बताई गई। मुझे खुशी है, इस ब्रिज के कारण हमने काफी रिसर्च किया और इस ब्रिज को पूरा करने के लिए इसकी लंबाई 6.75 किलोमीटर है और मुझे इस बात की खुशी है कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके जो 4,500-5,000 करोड़ में जो ब्रिज बन रहा था वो ब्रिज की लागत 925 करोड़ रुपए आई है और जो यूपी ब्रिज कारपोरेशन को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो 620 करोड़ रुपए में उनको इस कार्य का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस कार्य को 18 फरवरी 2021 को उनको ऑर्डर मिल चुका है। काम अच्छा होगा और निश्चित रूप से सर्बानंद जी सोनवाल जी के चुनाव के समय मैंने माजुली की जो जनता को जो आश्वासन दिया था, जो विश्वास दिया था, वो 2 साल के अंदर पूरा करने की, हम ब्रिज निर्माण करने के ये विश्वास को आपके साथ जो रखा आपने हमारे ऊपर, इस कार्य को पूरा करने की कोशिश होगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे काम जैसे हो, गुणवत्तापूर्ण काम जैसे हो, वैसे उसकी कीमत के तरफ भी हमारा ध्यान है। आदरणीय मोदी जी के हाथ से जो जोजिला टनल के निर्माण कार्य हमने शुरू किया है, इसकी कॉस्ट पहले 11,000 करोड़ रुपए तक आई थी। 4 बार टेंडर हो चुका था, पर हमने टेक्नोलॉजी और इसमें काफी सुधार करके एक ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5,000 करोड़ से कम करके देश के 5,000 करोड़ उस प्रोजेक्ट में हमने बचाया है। जिस प्रकार से माजुली के ब्रिज में भी हमने कीमत को कम करके एक अच्छे डिजाइन के साथ इसका विकल्प ढूंढा है और इसके लिए मलेशियन टेक्नोलॉजी के लिए मैंने यहां के एक्सपर्ट भेजे थे और स्टील फाइबर प्री कास्ट में भी हम उपयोग कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा डोज डिजाइन जो तकनीक है उसका भी इसमें उपयोग हो रहा है। मैं राज्य सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जमीन उन्होंने उपलब्ध कराई है और जो हमारी ड्यूटी है सैंड पर, मट्टी पर, वो रॉयल्टी ड्यूटी नहीं लगाने से 35 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। मैं फिर से एक बार सर्बानंद सोनवाल जी का अभिनंदन करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से इस ब्रिज के निर्माण के लिए अगर वो आग्रह नहीं करते तो ये ब्रिज कभी संभव नहीं था और इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ब्रिज से शिवसागर, देसांगमुख, टेकेली फुटा, डाकू का खाना, उत्तरी लखनपुर, माजुली, जोराट तक आवाजाही आसान हो जाएगी। आज मुझे और एक खुशी है कि इसके साथ साथ मैं माजुली परियोजना की भी यहां घोषणा कर रहा हूं और जिसका कार्य ही 2021 के पहले ही शुरू हो जाएगा। इसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, इसकी कीमत 8,730 करोड़ रुपए है। 3 पैकेज में इसका शुभारंभ होगा। पैकेज 1 उत्तरी लखीमपुर से कमलाबाड़ी घाट तक 36.4 किलोमीटर, पैकेज 2 कमलाबाड़ी घाट से जोरहाट तक 27.4 किलोमीटर और पैकेज 3 शिव सागर से उत्तरी लखीमपुर तक 73.88 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री की ओर से आसाम की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज धुबरी फुलवाड़ी ये महत्वपूर्ण ब्रिज का भी शुभारंभ कर रहे हैं।
ये ब्रिज की लंबाई 19.282 किलोमीटर है और इसकी लागत 4,500 करोड़ रुपए है। जनवरी से इसका काम शुरू हो गया है। आज मेरा विश्वास है कि गुबरी एवं फुलबाड़ी मेघालय के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रिज की मांग 10 साल पुरानी थी। यह ब्रिज बनने से गुबरी और फुलबाड़ी के बीच की दूरी 203 किलोमीटर कम हो जाएगी और फुलबाड़ी के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार के लिए गुबरी सबसे नजदीक शहर मिल जाएगा। यह ब्रिज फुलबाड़ी के पास स्थित फकीरगंज रिवर पोर्ट के लिए भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। यह ब्रिज सामरिक और सामाजिक मामलों में भी काफी महत्वपूर्ण है और इस ब्रिज से आसाम, मेघालय का पश्चिम बंगाल के साथ सीधा संपर्क हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से गुबरी तक 55 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम अक्टूबर 2021 में भी शुरू हो जाएगा। इसका भी मैं आज ऐलान करता हूं। यह ब्रिज बनने से भूटान, बांग्लादेश आने जाने की 150 किलोमीटर की दूरी और 5 घंटे का समय बचेगा और इसलिए मैं आसाम और मेघालय की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में इस साल में और 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना हम आसाम में शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट की एरिया है, जिसके ऊपर विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया गया, उसके तरफ उन्होंने विशेष ध्यान देने का हम सबको आदेश दिया है और उन्हीं के आदेश के अनुरूप आज तेजी से नॉर्थ ईस्ट में आसाम हो, मेघालय, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, सभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। चाहे रोड का काम हो, चाहे रेलवे का काम हो, चाहे वाटरवेज का काम हो या चाहे एयरपोर्ट का काम हो। मैं जब शिपिंग मिनिस्टर आज मनसुख भैया उपस्थित है, उन्होंने भी आज 3,000 करोड़ के कामों का शुभारंभ किया है और जब मैं शिपिंग मंत्री था तो ब्रह्मपुत्रा को भी जलमार्ग बनाने का एक मौका मुझे मिला था। आसाम का विकास हो रहा है, आसाम की तस्वीर बदल रही है, आसाम प्रगति और विकास की ओर आगे दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट और आसाम की निरंतर प्रगति हो रही है। मैं फिर से एक बार सर्बानंद सोनोवाल जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा और आज हमारे विभाग से करीब 14 से 15,000 करोड़ रुपए का ये सब कार्य आज आपके क्षेत्र में हो रहा है, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। पिछले बार मैं आया था, यहां के साधु संत सबने आशीर्वाद दिए थे, उन्होंने आग्रह किया था और मुझे व्यक्तिगत रूप से आज खुशी है कि सोनोवाल जी ने जो मांगा था, जिसकी जबान मैंने दी थी, वो हमारे संतों के आशीर्वाद से आज उसको पूरा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए फिर से एक बार मैं माजुली की जनता को हाथ जोड़कर विनम्रता से अभिवादन करते हुए उनको आशीर्वाद मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय नितिन गडकरी जी। हमें काफी खुशी है कि आज आप हमारे बीच आए और आपने अपने विचार व्यक्त किए। अब मैं आग्रह करूंगी असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें।